Welcome to SGKG Studies YouTube channel classes, and on this channel now we are going to discuss certain MCQs related to CCS Leave Rules 1972. So this is the set number 1. CCS Leave Rules 1972 came into force on, is it 1st December 72, 1st April 73, 1st June 72 or 1st July 72? And the answer is 1st June 1972. Very important from MCQ point of view. CCS Leave Rules 1972 shall not apply to रेलवे सर्वेंट्स. कहने का मतलब यह है कि CCS लीव रूल इनमें से किस पे अप्लीकेबल नहीं होता है. इज इट रेलवे सर्वेंट्स और पर्सन्स पेड फ्रॉम कंटीजेंसीज और मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज और ऑल ऑफ द एबव? एंड आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. CCS leave rules not applicable. CCS leave rule 1972 is not applicable to all these categories. For them there is separate leave rules. CCS leave rules 1972 shall be applicable to government servants appointed to the civil services, employees of non-statutory department canteens, government servants appointed in subordinate of central government, or all of the above? And the answer is all of the above. CCS leave rules 1972 is applicable to all these categories. And need not to remind that CCS stands for Central Civil Services. CCS stands for Central Civil Services. It's not Common Civil Services. It's not Civil Central Services. It's Central Civil Services. Number 4. CCS Leave Rules 1972 shall not apply to a person serving under central government on deputation from a servant government for a limited period, for the entire service thereafter, from the date of joining up to a state government, none of the above. So CCS Leave Rules 1972 shall not apply to a person for a limited duration who is employed for the limited duration. Remaining for all the persons it is applicable. How many schedule does the CCS Leave Rules 1972 contain? कितने शेड्यूल हैं CCS रूल में? सबसे पहले चैप्टर में ही हमने बताया था, इसमें 2 शेड्यूल है. There are 2 schedules in CCS Leave Rules 1972. So जिनको भी लगता है, those who think that they are gaining some information, gaining some knowledge from this channel, at least they should subscribe, like, share and comment. जिनको भी लगता है कि हमारे चैनल से उनको कुछ ज्ञान वृद्धि हो रही है, उनको ये चैनल सब्सक्राइब भी करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए, कमेंट भी करना चाहिए. पढ़े लिखे हो तो कमेंट करें, नहीं पढ़े लिखे हो तो भगवान जाने. Date of retirement or date of his retirement in relation to a government servant means, date of retirement means दिए हैं, दो सिचुएशन इन्होंने दिया है, आफ्टरनून और फोरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ. आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ, फोरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ, आफ्टरनून ऑफ द लास्ट वर्किंग, फोरनून ऑफ द लास्ट वर्किंग. सो डेट ऑफ रिटायरमेंट is afternoon of the last day of the month in which government servant attains age prescribed for the retirement. So it is not the afternoon of the last working day. Many people get confused because parties are given on the last working day. Suppose last working day is Friday, that person is retiring on Sunday, so party will be given on Friday. You can give the party on Friday, but his date of retirement will be in the afternoon of the last day of the month
whether it is Saturday, whether it is Sunday, whether it is Monday. It is the last day of the month is the date of retirement. Foreign service under CCS leave rules 1972 means लीव रूल्स में फॉरेन सर्विस का मीनिंग क्या होता है? सर्विस इन विच गवर्नमेंट सर्वेंट इज एम्प्लॉयड इन अ फॉरेन गवर्नमेंट with the permission to the state, service in which a government servant receives his pay from a NGO, service in which a government servant receives his pay with the sanction of the government from any source other than the consolidated fund of the India or consolidated fund of any state, service in which government servant receives any pay while on training abroad. And the correct answer is service in which a government servant receives. यहाँ पर फॉरेन सर्विस का मतलब ये होता है कि सर्विसेज अदर देन द डिपार्टमेंट फॉर विच ही इज रिक्रूटेड, फॉर विच इज अपॉइंटेड. सो बाकी दूसरे तीसरे किसी भी डिपार्टमेंट में वो जाते हैं तो उनको फॉरेन सर्विस कहा जाता है. एन ऑथोरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव इज कंटेन्ड इन. सो कौन सी अथॉरिटी लीव को, किस लीव को ग्रांट करने के लिए कौन सी अथॉरिटी कंपेटेंट है, उसके लिए शेड्यूल शीट में मेंशन किया हुआ है. उस शेड्यूल शीट का नाम है शेड्यूल शीट 1. सो फर्स्ट शेड्यूल में कंपेटेंट अथॉरिटी के बारे में मेंशन किया हुआ है. वेकेशन डिपार्टमेंट अंडर CCS लीव रूल्स 1972 मीन्स. वेकेशन डिपार्टमेंट के बारे में हमने चर्चा किया था जिस समय हम क्लासेस कर रहे थे. सो वैकेशन डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट को कहते हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक पीरियड में सबको एक साथ लीव दे दिया जाता है. विंटर वेकेशन होगा, समर वेकेशन होगा, क्रिसमस वेकेशन होगा, न्यू ईयर वेकेशन होगा, दशहरा वेकेशन होगा. तो उस पीरियड में वो डिपार्टमेंट ही बंद हो जाता है. फॉर एग्जांपल स्कूल समर वेकेशन 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज, 35 डेज, जो भी गवर्नमेंट का रूल हो, समर वेकेशन में उतने दिन स्कूल बंद. कोई टीचिंग स्टाफ भी नहीं चाहिए, नॉन टीचिंग स्टाफ भी नहीं चाहिए, एक्सेप्ट इन सम एक्सेप्शनल सिचुएशन दैट विल बी डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट, बट इन जनरली दे विल ऑल गो ऑन ए लीव. जुडिशरी में भी यही होता है. दशहरा में हाई कोर्ट बंद, सारे जज साहब छुट्टी पे, कोर्ट छुट्टी पे. तो ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ पे, और बाकी जब कोई डिपार्टमेंट कलेक्टेरिएट ऑफिस हो उसका कोई वेकेशन नहीं होता है, कोर्ट का वेकेशन होता है. तो कुछ वेकेशन वाले डिपार्टमेंट है और कुछ नॉन वेकेशन वाले डिपार्टमेंट है. जो वेकेशन वाले डिपार्टमेंट है उसमें एम्प्लॉय उसी पीरियड में अपना वेकेशन एंजॉय कर लेते हैं, उनका लीव इक्वल हो गया. और जो नॉन वेकेशनल डिपार्टमेंट है उसमें इंडिविजुअल एम्प्लॉय इंडिविजुअली लीव को अप्लाई करते हैं. सो यहाँ पर कह रहे हैं कि वेकेशन डिपार्टमेंट अंडर CCS लीव रूल 1972 मीन्स अ डिपार्टमेंट विच वर्क्स ड्यूरिंग वेकेशन, a department or part of the department to which regular vacations are allowed, a department giving fixed 2 months vacation to its employees, a department which is not governed by the CCS rules. And correct answer is a department or part of a department to which regular vacations are allowed. Question number 10th. Government servants to whom CCS leave rules 1972 apply shall continue to be governed by these rules while on temporary transfer to. So जिन पर पहले से ही CCS लीव रूल अप्लाई है, अगर वो टेम्पोररी ट्रांसफ़र में जाते हैं इन पर भी तो अप्लाई होगा कि नहीं. इंडियन रेलवे में टेम्पोररी में जाते हैं, जैसा कि आपको पता है इंडियन रेलवे में CCS रूल अप्लीकेबल नहीं होता है. स्टेट गवर्नमेंट का अपना CCS रूल होता है. फॉरेन सर्विसेज में क्या है, उसके लिए थोड़ा सा रूल डेविएशन है. यहाँ पर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट टू होम CCS लीव रूल्स शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू बी गवर्नड बाय दीज रूल्स वाइल ऑन टेम्पोररी ड्यूटी में. अगर इन डिपार्टमेंट में किस में जाते हैं तो लीव रूल विल कंटिन्यू एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, पेरेंट डिपार्टमेंट के अनुसार ही आपका लीव रूल वहाँ पर रेगुलेट होता रहेगा. चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, टेम्पोररली यहाँ पर दिया हुआ है टेम्पोररी ट्रांसफ़र, टेम्पोररली किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएं, आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के लीव रूल्स के अनुसार ही आपका लीव रूल गवर्न होता रहेगा. आज का नीति श्लोक.
कः कालः कानि मित्राणि को देश को व्ययागम कस्याहं का च मे शक्तिरिति चिन्त्य मुहुर्मुहुः। कैसा समय है, कैसी परिस्थिति है, कौन मेरे मित्र हैं, मैं किस देश में हूँ, मेरी आय और तदनुसार व्यय कितनी है, मैं कौन हूँ और मुझ में कितनी शक्ति है, इन विषयों पर बारंबार विचार करना चाहिए और तदनुसार ही आचरण करनी चाहिए। कहने का मतलब कि काल समय परिस्थिति के अनुसार ही व्यक्ति को आचरण करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपको किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, तो आपको सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए, शेयर, लाइक एंड कमेंट भी करनी चाहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।